قصہ ابھی حجاب سے آگے نہیں بڑھا، میں آپ و جناب سے آگے نہیں بڑھا۔ مدت ہوئی کتاب محبت شروع کیے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی گفتگو کے لیے میں نے کیے سوال، وہ مختصر جواب سے آگے نہیں بڑھا۔ آفس سے آ کر فریش ہونے کے بعد وہ شام کی چائے لان میں بیٹھ کر پینا پسند کرتے تھے۔ ابھی بھی شام کے ڈھلتے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ عشاء کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ داریان کہاں ہے؟ اس کی کمی محسوس کرتے انہوں نے پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے جا رہا ہے، ابھی تک تو واپس نہیں آیا۔ عشاء نے لا علمی سے جواب دیا تو وہ ٹیبل پر سے فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ تیسری بیل پر ان کی کال پک کی گئی۔ وعلیکم السلام، کہاں پر ہو تم؟ باہر ہوں، دوستوں کے ساتھ، کچھ دیر تک پہنچتا ہوں گھر۔ وہ ان سے جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو لیکن کبھی ان کی نافرمانی نہیں کر پاتا تھا۔ فرمان آپ اسے کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کے موڈ کو دیکھتے ہوئے عشاء نے سنبھل کر بات شروع کی تھی۔ تم جانتی ہو عشاء، میں اس پر کبھی روک ٹوک نہیں کرتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارا دھیان صرف اپنی پڑھائی پر لگائے۔ ابھی سے جاب کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اسے؟ وہ سنجیدگی سے 2 ٹوک انداز میں بولے۔ میں اسٹڈی روم میں ہوں، وہ واپس آئے تو وہیں بھیج دینا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھر کے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عشاء نے جواباً کچھ کہنے کے بجائے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ عبیر غازی اور سارا کے ولیمے کی تقریب حویلی کے بڑے سے صحن میں ہوئی تھی، جس کے انتظامات صبح سویرے سے ہی شروع کر دیے گئے تھے۔ سارے ملازم پھرتی سے اپنے کام نپٹاتے پھر رہے تھے، جبکہ اندر سب خواتین نئی دلہن کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ سارا کا تعلق بھی ایک اونچے خاندان سے تھا جس کے دادا سعادت غازی کے پرانے دوست تھے۔ یہ رشتہ صرف اسی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے سعادت غازی نے جوڑا تھا۔ انہوں نے عبیر سے اس کی پسند نہیں پوچھی تھی، نہ اس کی رضامندی جاننی چاہی تھی، صرف اسے فیصلہ سنایا گیا تھا جس پر اس نے بنا کسی احتجاج کیے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ حویلی کے بچوں کو یہی تربیت دی گئی تھی، وہ چاہ کر بھی باغی نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کا دل کچھ بھی کہے لیکن وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور یہی بات سعادت غازی کے فخر میں اضافہ کرتی تھی۔ ان کے پوتے اور پوتیوں کی فرما برداری انہیں گہرا سکون عطا کرتی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں انہوں نے کسی پر زبردستی مسلط نہیں کی تھی، جو جس فیلڈ میں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ صرف ان کی اتنی خواہش تھی کہ ریشام یا بریزے میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے۔ پوتوں کو تو ان کا بزنس سنبھالنا تھا، اس لیے انہوں نے خود ہی اس بزنس پڑھنے کو کہا تھا۔ بریزے کو تو پڑھائی کا شوق تھا ہی نہیں، گریجویشن کے بعد اس نے آگے نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور رہی ریشام، وہ سعادت غازی کی لاڈلی پوتی تھی، ساری زندگی ان کے حکم کی منتظر، ان کی ہر آواز پر جی دادا جان کہنے والی، یہاں ان کی مخالفت کر گئی تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے بزنس کو ہی چنا۔ وہ اس سے خفا تھے لیکن اس کے منانے پر مان بھی گئے تھے۔ ریشام میں یہ خاص صلاحیت تھی، وہ انہیں راضی کیے بغیر ان کے پاس سے ہلتی بھی نہیں تھی۔ دیر سے اٹھنے کے باعث اس نے اکیلے ہی ناشتہ کیا تھا اور ابھی عورتوں کی محفل سے ذرا الگ تھلگ سنگل صوفے پر بیٹھے چائے پیتے ہوئے فون یوز کر رہا تھا جب وہ اس کے پاس چلی آئی۔ تھینک یو۔ آف وائٹ ٹکنوں تک آتی سادی سی فراق پر آرگینزا کا بڑا سا دوپٹہ سر پر سنبھالنے کی بمشکل کوشش کرتے ہوئے اس نے احسان اتارنے والے انداز میں اس سے کہا۔ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس پھول کے لیے۔ کون سے پھول کے لیے؟ فاز کے چہرے پر ابھی بھی الجھن تھی۔ او اچھا، وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے وہ میز پر سے پیر اٹھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہی پھول نا جو میں نے تمہیں پھینکنے کے لیے کہا تھا؟ وہ نہیں، وہ پھول جو تم نے میرے روم میں رکھا تھا۔ میں نے اسے حیرانگی سے بریزے کو دیکھا۔ میں نے کوئی پھول نہیں رکھا تمہارے کمرے میں، مجھے پتا ہے تم نے ہی رکھا تھا، اب بنو مت۔ اس نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ بریزے، میرا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کام کیوں کروں گا میری پیاری بہن؟ فار نے بے چارگی سے جواب دیا۔ تم نے کل مجھ سے
रूडली बात की थी, इसलिए मुझे लगा तुमने सॉरी कहने के लिए रख दिया होगा। जो हरकत तुमने की थी मुझे वाकई उस पर गुस्सा था और अभी भी है। मैं तुमसे सॉरी क्यों करूँगा? तो वो फूल किसने रखा फिर मेरे रूम में? बरीजे का जहन खुद उलझने लगा था कि अगर वो फूल फाज ने नहीं रखा था तो फिर किसने रखा? आप मुझे और कितना ख्वार करवाएंगी? उसके पीछे पीछे चलते शॉपिंग बैग्स उठाए वो इंतहा का बेजार लग रहा था। रिशाम को रात पहनने वाले ड्रेस का मैचिंग दुपट्टा लेना था। हवेली में सब अपने ही कामों में मसरूफ थे। वो यूसुफ के साथ अकेली ही बाजार निकल आई थी। ज़ारिया गाजी ने कहा भी था खालदा बुआ या किसी को साथ ले जाए, लेकिन वो जानबूझकर किसी को नहीं लाई थी। लेना तो सिर्फ एक दुपट्टा था, उसकी पसंद के मुताबिक वो तो मिल नहीं रहा था, लेकिन पिछले 1.5 घंटे में वो काफी कुछ खरीद चुकी थी। शॉपिंग करना तुम्हें ख्वारी लगता है यूसुफ? उसने अचानक से रुककर पीछे मुड़कर आबरू उठाकर उसे देखा। काली चादर में छुपे उसके चेहरे पर सिर्फ स्याह आंखों की गहरी चमक थी जिनसे वो नजरें चुरा गया था। मेरे लिए तो ख्वारी ही है, वो महज बड़बड़ा कर रह गया। कितने बोर इंसान हो तुम। बाजार में खूब चहल पहल सी लगी थी, रश भी काफी ज्यादा था। हाथों में शापर्स होने के बावजूद भी वो उसके साथ इस तरह से ध्यान रखते हुए चल रहा था कि रिशान को किसी शख्स की उंगली भी टच ना हो। हवेली से बाहर वो उसकी जिम्मेदारी थी जिसे निभाना उसे खूब अच्छे से आता था। आपको मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा तो आप कोई और ड्रेस देख लें। यूसुफ को अंदाजा हो चुका था कि वो जानबूझकर अपने खासे मैचिंग दुपट्टों को रिजेक्ट किए जा रही है। यकीनन उसकी दिलचस्पी दुपट्टे से ज्यादा शायद बाजार घूमने में थी। तुम्हारा मतलब है न्यू रेडीमेड सूट? मैं अपने सारे पैसे खर्च कर चुकी हूँ और जितने पैसे बचे हैं उनमें तो दुपट्टा भी अब शायद ही मिले। एक ताज़ा फूलों की दुकान के पास रुककर स्टॉल पर लगे एक नरम फूलों पर हाथ फेरते हुए उसने बताया, आपको ये सब खरीदने से पहले सोचना चाहिए था ना। यूसुफ का इशारा उन शॉपर्स की तरफ था जिनमें न जाने उसने क्या कुछ लिया हुआ था। आप देख लें, ड्रेस पेमेंट में कर दूंगा। मोतिये के लड़ी का कलाई पर लपेटते हुए जब उसके कानों में उसकी आवाज पड़ी तो वो मुस्कुराहट दबाने को निचला लब दांतों तले दबा गई थी। किन आंखों से उसके बेजार से नकूश को देखा। सोच लो, तुम्हारे महीने की सैलरी चली जाएगी मेरे एक ड्रेस पर। उसका अंदाज भरपूर शरारत लिए हुए था। पूरे साल की भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं है। उसने लम्हे की ताखीर किए बगैर कहा तो उसकी स्याह आंखों में खफकी लहराई थी। तुम्हें मेरी संगत इतनी बुरी लगती है कि मेरे साथ ना रहने के लिए अपने सारे पैसे लुटाने के लिए तैयार हो? कलाई से मोतिये की लड़ी खींचकर उतारते हुए उसने स्टॉल पर वापस रख दी थी। मुझे सिर्फ इस जगह से मसला है और मजीद के हवेली में मेरे काफी सारे काम। बस करो यूसुफ, मेरे कान पक चुके हैं तुम्हारे कामों की तफसील सुन सुनकर। वो बेजारी से बोली, आफ्टर ऑल इट्स माई ड्यूटी। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि खुद को मुलाजिम मत समझा करो। तुम दादा जान के कज़न के बेटे हो, मतलब हमारे रिश्तेदार हुए ना, भले दूर के ही सही। आपकी करम नवाजी है कि आप मुझे मुलाजिम से ज़्यादा का दर्जा देती हैं। आज के ज़माने में रिश्ते से ज़्यादा पैसे की कदर है। रेशम बीबी, आपके दादा जान ने मुझे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर के बजाय अनेक्सी दी रखी है। मेरे खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाता है। मेरे ख्याल से इस रिश्ते का हक उन्होंने अदा कर दिया है जितना वो समझते हैं। हक मांगने से मिलता है, खामोश रहने से नहीं। आप मुझे बगावत पर उकसा रही हैं क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं। मैं समझा नहीं आपका मतलब। समझ तो तुम्हें सब आता है, अब जानकर अनजान बनना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए, उसने संजीदगी से कहा। लेकिन मैंने अभी ड्रेस नहीं लिया है। मेरी तौबा है जो मैं आइंदा आपके साथ शॉपिंग पर आऊं। वो अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करता था, हमेशा उससे अदब से ही पेश आया करता था, लेकिन कई बार वो उसे इतना जज कर देती थी कि ना चाहते हुए भी अपनी जज्बात का इजहार कर जाता था। आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मुझे किसी और को इतना परेशान करने में मज़ा नहीं आता जितना तुम्हें करने में आता है। यानी कि आप मान रही हैं कि पिछले 2 घंटे से आप जानबूझकर सारे मैचिंग के दुपट्टों को रिजेक्ट किए जा रही हैं सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। मुझसे ज़्यादा तुम्हें ये बात मानने की ज़रूरत है कि
मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? उसकी ढकी छुपी बातों के मतलब वो साफ समझता था, लेकिन कभी उसके सामने इकरार नहीं करता था। वो वाकई ये बात तो सोचने लायक थी कि रेशम को कभी शॉपिंग का इतना क्रेज नहीं रहा था। उसकी शॉपिंग हमेशा जारिया गाजी या रायमा पुप्पो ही करती थी। वह मुश्किल ही वो बाजार जाने पर राजी होती थी, और कभी चली जाए तो आधे घंटे से ज्यादा वहां रुकती नहीं थी। और आज यूसुफ के साथ आई थी तो उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं था। वो जताते से लहजे में कहती एक शॉप में दाखिल हो गई थी जहां इंतहाई नफीस से रेडीमेड ड्रेस मौजूद थे। बड़ी सी दुकान पर तायराना सी निगाह डालकर वो यूसुफ की जानिब मुड़ी। मुझे तो कोई आइडिया नहीं, तुम ही बताओ। उसके चेहरे पर उलझन थी। मेरा भी आपके वाला हाल है, आप जो लेना चाहें ले लें। बैग्स एक तरफ रखकर वो चेयर पर आराम दा हालत में बैठ गया था। इतना वो हवेली के कामों से नहीं थकता था जितना रेशम ने उसे थका डाला था। इस शॉप में भी आधे घंटे से जायद का वक्त हो चुका था। सेल्समैन एक के बाद एक ड्रेस दिखाते हुए काउंटर पर ढेर कर चुके थे, लेकिन कोई एक भी उसके मिजाज के मुताबिक नहीं था। यूसुफ को अपनी ऑफर सरासर एक बेवकूफ़ी लगी थी। उसका दुपट्टे की मैचिंग से ज़्यादा तो ड्रेस सेलेक्ट करना ज़्यादा एसाब शकन काम था। उसकी नज़रें यूं ही पूरी शॉप का जायज़ा ले रही थी, जहां एक से एक बेहतरीन मलबूसात मौजूद थे जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं था। वाकई में उसके महीने की सैलरी लग जानी थी। वो दिखाना एक सेल्स बॉय को उसने वो ड्रेस लाने को कहा था जो डमी पर था, लेकिन अभी इसे डिस्प्ले नहीं किया गया था। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है सर, आज ही आया है, अभी तक हमने इसे डिस्प्ले भी नहीं किया है। सेल्स बॉय ने अपने पेशावराना अंदाज में बोलते हुए वो ड्रेस उठा लाया था जो टी पिंक कलर की ऑर्गेन्जा की फ्रॉक थी, जिसके गले और दामन पर सुनहरे रंग का दीदा जेब काम किया गया था। उसकी आस्तीनियों की कढ़ाई भी बाजू तक बनी हुई थी। यूसुफ के कहने पर उसने फ्रॉक का दुपट्टा निकालकर उसके सामने फैला दिया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि उसे मुतमईन कर गई थी। रेशम के आम तौर पर ओढ़ने वाले दुपट्टे भी इतने ही बड़े हुआ करते थे, जिन्हें वो इस तरह से कैरी करती थी कि उसे कोई चादर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। रेशम की पुश्त थी उसकी जानिब। जब 20 डिज़ाइन देखने के बाद भी उसे कुछ समझ न आया तो वो रहने दे भाई कहती पलट गई थी। जब उस पर नजर पड़ी तो पहले आंखों में ताजुब उभरा और फिर खुशगवार सी हैरत। वो दुपट्टे के पल्लू को हाथ में लिए उसका स्टिफ देखते हुए सेल्स बॉय से जाने क्या बात कर रहा था। एक डमी उसके पास खड़ी थी जिस पर मौजूद ड्रेस उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रखा था। उसने जब रेशम को अपनी जानिब मुतवज्जा देखा तो दुपट्टा छोड़कर चेयर से भी उठ खड़ा हुआ था। ये ठीक लग रहा है, उसने सवालिया अंदाज में उससे पूछा। ये बहुत हसीन लग रहा है। वो इस ड्रेस का जायजा लेती खुशी से बोली, इसे पैक कर दें। सेल्स बॉय को कहने के बाद उसने शुक्र का सांस भरा था। एक कठिन मरहला उसने हल कर लिया था। काउंटर पर पेमेंट करने के बाद वो ड्रेस का शॉपर भी उठा था बाहर आ गया था। कितने का है ये वैसे? बाहर निकलते हुए रेशम ने तजस्सुस से पूछा। आपको ड्रेस से मतलब होना चाहिए रेशम बेबी। एक तरफ इतनी इज्जत भी देते हो और फिर मेरी बात का जवाब भी नहीं देते। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। क्या अब हम घर चल सकते हैं? शुक्र करो मेरे पास उसकी मैचिंग की ज्वेलरी और शूज़ मौजूद हैं, वरना फिर तुम्हें 2 घंटे और ख्वारी करनी पड़ती। मैं घर जाकर शुक्राने के नवाफिल पढ़ूंगा कि अल्लाह ने मुझे इस ख्वारी से बचा लिया। लेकिन चूड़ियाँ नहीं है मेरे पास, अब इसमें कितना वक्त लगेगा? ये लड़की आसानी से इसकी जान छोड़ने वाली नहीं थी। बस 2 मिनट। वो उंगलियां उठाती वो शरारत से बोली। इनकार करने का इसके पास कोई हक था नहीं। नाचारा अब वो चूड़ियों की तलाश में उसके पीछे पीछे चल रहा था। वैसे तुमने इतना महंगा ड्रेस दिला दिया है, मैं घर पर सबको क्या बताऊंगी? मुझे नहीं मालूम। उसने लाइल्मी से शाने अचका दिए। सच बता दीजिएगा, इसमें क्या कबाहत है? अच्छा मैं सबको ये बताऊं कि ये ड्रेस तुमने मुझे अपने पैसों से दिलाया है? सब ना जाने क्या कुछ समझ बैठेंगे। तो फिर ये कह दीजिएगा कि पैसे कम होने की वजह से आप मुझसे उधार ले थे।
तुम सच में कहीं ऐसा ही तो नहीं समझे? लेकिन मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये कितने का भी हुआ मैं उसे उधार नहीं समझूंगी, बल्कि तुम्हारी तरफ से दिया गया पहला तोहफा समझूंगी। वो कभी उसके जो माना बातों पर रिएक्ट भी नहीं करता था, फिर भी कितने हक से वो कह रही थी। उसका इस तरह से हक जताना यूसुफ को बुरा नहीं लगता था। उसके बस में होता तो वो अपनी सारी जिंदगी उसके लिए दान कर देता। आपको तोहफा देने वाली मेरी औकात नहीं है, अब ये वैसे ही रख लें। उसका लहजा धीमा था। तुमने फिर फजूल बातें करनी शुरू कर दी। उसकी आंखों में नाराजगी नजर आई। कुछ ही देर में वो उस फूल को भूल भाल कर अपनी कजनों के साथ बातों में लग गई थी। तकरीब के लिए सबने सर शाम से तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार भी मर्द और ख्वातीनों के लिए अलग अलग इंतजाम रखा गया था। वलीमे के हिसाब से ज्यादातर सब ने हल्के रंगों का ही इंतखाब कर रखा था। कानों में झुमका डालती वो सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी। उस टी पिंक फ्रॉक में उस नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। लग रहा था जैसे वो ड्रेस बनाया ही उसके लिए गया हो। हाथों में कांच की चूड़ियां और गजरे पहने हुए थे। माथे पर सुनहरी टीका लगाया हुआ था। कमर तक बिखरे हुए दराज बालों को उसके दुपट्टे ने छुपा लिया था, जिसने पेशानी से थोड़ा पीछे कर रखा था। अपनी ही धुन में आते सालार ने जब उसे देखा तो वो अपनी जगह जम गया था। वो पलके तक नहीं झपका पाया था। हमेशा आम से हुलिये में रहने वाली रेशम की ये सज धज उसे किंग कर गई थी, जबकि उसके गुलाबी लबों पर इस वजह से मुस्कुराहट थी कि न जाने ये ड्रेस दिलाने वाले की नजर जब उस पर पड़ेगी तो तब उसका क्या रद्द अमल होगा। क्या देख रहे हो? राहिमा पुप्पो ने उसका शाना तबकते हुए पूछा। उसकी नजर उतार दी आप। मुस्कुराहट छुपाकर वो खुद को संजीदा जाहिर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं कई बार उतार चुकी हूँ, बस अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। वैसे आपको इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, उसके नसीब तो मुझसे जुड़े हैं। कान की लो मसलते हुए वो अनजान बनकर बोला, मेरी तो बस यही दुआ है कि तुम दोनों की खुशी देखना भी जल्द नसीब हो। उन्होंने मोहब्बत से सालार की पेशानी चूमते हुए कहा था। गोल्डन मैक्सी और डिनर सूट में मलबूस दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे बिल्कुल एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उनकी जानिब उठने वाली हर निगाह में सताइश थी। पिस्तई रंग के खूबसूरत ड्रेस में वो सोना के साथ यहाँ वहाँ घूमती अपनी ही बातों में मसरूफ थी। मेहमानों की खुशकिस्मती थी कि मेहंदी के दिन की तरह वो अलग थलग नहीं बैठी थी। आज जब से खुश इखलाकी से मिल रही थी, यूं भी बरीजे गाजी अपने मूड के मुताबिक चलती थी। मूड हुआ तो हंसकर बात कर ली, और अगर नहीं है तो फिर तो कौन में कौन। वो तुम्हें नहीं जानती तो बस नहीं जानती। और एक तरफ रेशम थी। मूड चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर वो किसी से मिलती थी तो उसकी मुस्कुराहट और खुश इखलाकी में फर्क नहीं आता था। जिनसे भी वो मिल रही थी सब उसकी और उसके लिबास की तारीफें ही कर रहे थे, जिनके जवाब में वो मुस्कुरा देती थी। उसे तो सिर्फ एक शख्स की तारीफ से मतलब था, जिसने अभी तक उसे देखा भी नहीं था, और देख भी लेता तो क्या था, उसने कौन सा उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान के गुलाबे मिला देने थे। उसको मालूम था यूसुफ के मुंह से अपनी तारीफ सुनना सिर्फ एक दीवाने के ख्वाब की मानंद था, लेकिन इस दिल नादा की खुशफहमियों का आखिर क्या किया जा सकता था। जारिया गाजी से उसे डांट भी पड़ चुकी थी कि क्या ज़रूरत थी यूसुफ से पैसे लेकर नया जोड़ा लेने की, जबकि उसके पास काफ़ी सारे नए जोड़े पहले से मौजूद थे। वो उनसे कह नहीं पाई थी कि इस एक जोड़े के मुकाबले में अगर 1000 जोड़े भी ला कर रख दिए जाते तो भी उसकी अहमियत फिर भी कम नहीं होनी थी। पुरफसो तन्हाई और ख्वाबनाक माहौल में वो बेहद बेसुध नींद के आगोश में थी, जब बगैर किसी के आवाज के खिड़कियों के फटवा होने लगे थे। तेज हवाओं ने वहां ठंडक का एहसास बढ़ा दिया था। एक दिलफरेब सी खुशबू वहां फैलती जा रही थी। बरीजे गहरी नींद में होने के बावजूद भी उस सरगोशी पर उसकी आंख झटके से खुली थी। रूम की लाइट्स ऑन थी। आज वो बंद करके नहीं सोई थी। अनजाने से खौफ का शिकार होते हुए पूरे कमरे
नजरें दौड़ा रही थी, लेकिन वहां किसी की मौजूदगी का जरा सा भी शायबा नहीं था। गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करती वो दोबारा लेटने लगी थी, जब तकिए पर रखे उस गुलाब के फूल को देखकर उसकी आंखें खौफ से फैली थी। वो जैसे करंट खाकर बेड से उठी। एक डर उसके अंदर सरायत करता जा रहा था। एक बेजरर से फूल से कोई इतना खौफजदा कैसे हो सकता है? आखिर वो आवाज उसके कहीं बहुत करीब से उभरी थी। वो बेसाख्ता पलटी, लेकिन कमरा खाली था। कौन हो तुम? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? वो चीख उठी। फाज, आशिर, अगर ये तुम दोनों हो तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। उसे यही लग रहा था जैसे वो दोनों उसके साथ कोई मजाक कर रहे हों, लेकिन वो आवाज तो उन दोनों में से किसी की नहीं थी। ऐसी भारी आवाज और दिलकश लब वो लेजा उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। एक लम्हे में कमरा अंधेरे में डूब गया था। सारी लाइट्स खुद ब खुद बंद हो चुकी थी, लेकिन खुली खिड़की से अंदर तक आती चांद की रोशनी से कमरा मुनव्वर होने लगा था। हवा से सरसराते पर्दे वहां किसी की मौजूदगी का पता दे रहे थे। जब वो हल्का सा साया बरीजे को वहां महसूस हुआ तो वो खौफ से पीछे हटी। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। कौन हो तुम? उसका तनफ्फुस तेज हो रहा था। सरसराती आवाज में वो मुश्किल से बोल पाई थी, जो भी तुम समझना चाहो, ख्वाब, ख्याल, हकीकत। भेद भरी खामोशी में उसकी आवाज फिर उभरी थी, या फिर मोहब्बत। बरीजे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सिर्फ पलक झपकने की देर में वो साया पर्दे की ओर से निकलकर उसके सामने आ चुका था। वो उससे सिर्फ कुछ इंच के फासले पर था। मुझसे डरो मत। अपनी चमकती काली आंखों से उसकी आंखों से झांकते हुए उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सांस रोके तेज तेज पलके झपकते हुए वो यकीन करने की कोशिश कर रही थी, आया वो हकीकत में उस शख्स को अपने करीब खड़ा देख रही थी या वो महज एक ख्वाब था। दूसरे ही लम्हे उसका सर घूमा था। वो चकरा कर फर्श पर गिर पड़ी थी। आप मसरूफ तो नहीं? खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। आ जाओ अंदर। किताब बंद करके मेज पर रखते हुए उन्होंने कहा। वो जब उनके सामने रखे सोफे पर बैठ गया तो उन्होंने बात का आगाज किया। रात किस वक्त सोए थे तुम? उनकी जांचती नजरें उसी पर थी जो उनसे इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। जब ये गड़बड़ा गया। मालूम नहीं, शायद 3 बज रहे थे। नजरें झुकाए कहते हुए उसने झूठ का सहारा नहीं लिया था। नींद की गोलियां लेने के बाद भी फरमान की अगली बात ने उस पर घड़ों पानी डाल दिया था। उसे कतई खबर नहीं थी कि वो इस बारे में जान जाएंगे। वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबते उनसे नजरें नहीं मिला सका था। ऐसे कब तक चलेगा दारियान? अभी तो तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है। उनके अंदाज में तासुफ था। क्यों खुद को अजियत दे रहे हो इस तरह? ये अजियत सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। उसका धीमा लहजा सपाट था। अच्छे बुरे फेज हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। अक्लमंद वो नहीं होते जो माजी को लेकर हाल में परेशान होते हैं और फिर अपना मुस्तकबिल भी खराब करते हैं। भूल जाने में ही भलाई है। दारियान के शाने पर हाथ रखते हुए वो नरमी से बोले, आपके लिए कह देना आसान है फरमान भाई, लेकिन मेरे लिए ये करना नामुमकिन है। मैं उसे भुला नहीं सकता। आंखों में उमड़ आती नमी को छुपाने के लिए वो उठ खड़ा हुआ। आप नहीं चाहेंगे तो मैं कहीं जॉब नहीं करूंगा। जिस काम से आप रोकेंगे दोबारा उसका नाम भी जबान पर नहीं लाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं मजबूर हूँ। आप मुझे उसे भूल जाने के लिए मजबूर मत करें। ये मेरे लिए जानलेवा अजियत के सिवा और कुछ नहीं होगा। उसके लहजे की नमी और जख्मीपन को वो गहराई से महसूस कर रहे थे। फरमान का दिल कटता था उसकी अजियत पर, लेकिन वो लाचार थे। इस मौजू पर बात करने के लिए वो कभी राजी नहीं होता था। सुबह दुखते सर के साथ जब वो उठी तो उसका जिस्म बुखार में भुनक रहा था। रायमा पुप्पू उसके पास ही बैठी उस पर कुछ पढ़कर दम कर रही थी। उसे आंखें खोलते देखा तो बेसाख्ता शुक्र अदा किया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं? उसका जहन ब्लैंक हो रहा था। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि रात जिस शख्स को उसने अपने रूम में देखा था वो वाकई वहां मौजूद था या फिर उसने कोई
डरावना ख्वाब देखा था। मैंने रेशम को तुम्हें जगाने के लिए भेजा तो उसने वापस आकर बताया कि तुम तो बुखार में जल रही हो, खिड़कियां भी बंद करके नहीं सोती तुम, इतनी ठंड में तो बुखार होना ही है। हमना गाजी न जाने क्या क्या कह रही थी, वो बस अपना सर पकड़े मुसलसल उसी ख्वाब के बारे में सोची जा रही थी। ठंडे पानी की पट्टियां रख के तुम पे दम किया है तो अब बुखार कुछ कम हुआ है तुम्हारा, चलो उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ तुम्हारा। उनके इसरार करने पर नाचारा उसे उठना ही पड़ा। मैं आती हूँ कुछ देर में। उनके जाने के बाद वो उठ खड़ी हुई थी। बड़ी सी हवादार और रोशन खिड़कियां अभी भी खुली हुई थी, जहां से सूरज की किरणें छन छन करके अंदर तसल्लुत जमा रही थी। ख्वाब, ख्याल, हकीकत या फिर मोहब्बत? अपनी सोचों को झटकते हुए वो वार्डरोब से हैंग किया हुआ सूट निकाल कर वॉशरूम की जानिब बढ़ रही थी जब उसकी तवज्जो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वहां पर उसके साजो सामान के पास वही फूल पड़ा था जो कल रात उसे अपने तकिए पर दिखाई दिया था। उसने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया तो क्या वो ख्वाब नहीं था फिर? कपड़े नीचे फेंक कर वो भागती हुई अपने कमरे से निकली थी। बराबर में ही रेशम का रूम था। बगैर नॉक किए अंदर दाखिल होकर उसने फौरन से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया था। वो जो यूनी जाने के लिए तैयार हो रही थी, बरीजे को इस तरह से वहां आते देखकर हैरान हुई। तुम्हें क्या हुआ है रेशम? रेशम, कल रात कोई मेरे रूम में आया था। रोते हुए उसके गले लगी। वो बेहद खौफ का शिकार थी। आंसू के दरमियान वो बमुश्किल बोल पा रही थी। क्या मतलब, कौन था तुम्हारे रूम में? तुम रोना तो बंद करो पहले। बरीजे को काउच पर बिठाकर वो उसके लिए पानी का गिलास ले आई थी। बरीजे की हालत ने उसे परेशान कर डाला था। मुझे नहीं मालूम। और वो फूल, वो एक एक करके सारी बात उसे बताती कि जो उसे टोके बिना सुन रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है रेशम। हाथों में सर गिराए उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। मेरी बात सुनो बरीजे। रेशम ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा। रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। हवेली में इतनी सिक्योरिटी है, कोई अननोन पर्सन कैसे यहाँ दाखिल हो सकता है और मिनटों में कैसे गायब हो सकता है आखिर? मेरी बात का यकीन करो रेशम, वो कोई ख्वाब नहीं था, ना ही मेरा वहम था। मैंने सच में उसे अपने सामने देखा था। वो मेरे पास खड़ा था, मुझसे बात कर रहा था। बरीजे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बात समझाए। और तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, और वो फूल देखो वहीं पड़ा है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले आई थी। कहाँ है फूल? रेशम ने सवालिया अंदाज में पूछा, जबकि वो फटी फटी निगाहों से ड्रेसिंग को देख रही थी जहां उस फूल का नामो निशान भी नहीं था। वो अभी यहीं पर था, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाथ की पुष्ट से गीला गाल रगड़ते हुए वो यहाँ वहाँ देखती उसे तलाश कर रही थी। बरीजे में कह रही हूँ ना कि यहाँ कोई फूल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। शादी की वजह से तुम बहुत थक गई हो, सिर्फ रेस्ट करो, ठीक हो जाओगी। उसका चेहरा थामे वो नरमी से उसे समझाते हुए कह रही थी, जो भीगती हुई आंखों के साथ लब चबा रही थी। बैग और फाइल्स उठाते हुए वो कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच देखती जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए पहुंच की जानिब बढ़ रही थी। आराम से चलो, किस बात की जल्दी है तुम्हें? ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी होकर वो भी निकलने ही वाला था। यूनी के लिए लेट हो रही हूँ सालार भाई, लेक्चर मिस हो जाएगा। वो दोनों चलते हुए साथ ही बाहर आए थे। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझसे समझ लेना टॉपिक। हरगिज नहीं, आप पर तो अब मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। आपको मालूम था कि मेरी असाइनमेंट बनाने में हेल्प करनी है, आप फिर भी अपने दौरे पर चले गए। आप पर तो मैं अब कभी एतबार ना करूं। उसकी इतनी बेएतबारी पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा था। आखिरी मौका दे दो, अब किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसा तो सोचेगा भी नहीं। रेशम जमीर गाजी किसी को दूसरा मौका नहीं दिया करती। गाड़ी का शीशा साफ करते यूसुफ के कानों तक उसके कदरे ऊंची आवाज बखूबी पहुंच रही थी। ओ मतलब अब कोई चांस नहीं। उसके लहजे में मसनूई अफसोस था। बिल्कुल भी नहीं, आज से मैंने आपको अपने ज़ाती उस्ताद के ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। उसका शान बेनियाज अंदाज देखने से ताल्लुक़ रखता था। आज से आपके पास नहीं आऊंगी ट्यूशन लेने। साथ ही इतला भी दे दी थी,
آپ کی جاب چلی گئی، میری طرف سے افسوس قبول فرمائیں۔ خاموشی سے ان کی ساری باتیں سننے کے بعد فاض اس کے پاس آ کر بولا، بہت شکریہ۔ سالار نے بھی گہرے دکھ کے تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ ویسے تم کہو تو میں ٹیوشن دے دیا کروں گا تمہیں، فیس کے طور پر مجھے اچھی سی چائے اور کچھ اسنیکس وغیرہ بنا دینا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی قسمت آزمانے کا سوچا۔ تم تو رہنے ہی دو، فریج اور استری ٹھیک کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، اس نے نخوت سے کہا۔ میں تو کہتا ہوں سیکھ لو، فیوچر میں بہت کام آئے گا۔ کیوں، جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں فون کر دوں گی، تم آ جانا ٹھیک کرنے۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا فارغ ہوں گا کہ تمہارے ایک فون پر چلا آؤں گا؟ فاض نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اسے مت بلانا ریشام، اس بیچارے کی دکان پر پہلے ہی رش لگا ہوگا، لوگوں کے بلب، ٹی وی، واشنگ مشین، نہ جانے کیا کیا کچھ مرمت کرنے میں مصروف ہوگا۔ سالار نے شرارت چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں لوگ الیکٹریکل انجینئرنگ کو اتنا فار گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں۔ تم یہ کھڑے سوچتے رہو، میں جا رہی ہوں۔ گاڑی ریڈی تھی، یوسف نے اس کے لیے پچھلا ڈور کھولا تو وہ فاض کو کہتی اندر بیٹھ گئی۔ اب اس بات پر آپ مجھے ڈراپ کریں گے؟ وہ سالار سے بولا، تمہاری یونیورسٹی میرے راستے میں نہیں پڑتی، یا فضول میں دیر کروا دو گی؟ مجھے میٹنگ میں ایک دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کون سا بے شک آفس میرا اپنا ہے، لیکن ہر چیز کو چلانے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں جن پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں آفس وقت پر نہیں پہنچوں گا تو میری ہدایت کے بغیر اسٹاف کام شروع نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے مجھے لاکھوں کروڑوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس کا اثر صرف مجھ پر ہی نہیں میرے اسٹاف پر بھی پڑے گا۔ لیکن یہ مینجمنٹ کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تمہارا دل چاہے تو تم اپنی الیکٹریشین کی دکان بھلے دوپہر کے 2 بجے کھولنا، 2-4 پنکھے وغیرہ ٹھیک کر کے واپس آ جانا، کسی نقصان اور فائدے کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے سالار نے تفصیل سے کہا تو فاض نے بھی بے حد ناراضگی سے اسے دیکھا، ایسا پہلی بار نہیں تھا۔ یہ ڈگری چوز کرنے پر اسے ہر کسی سے یہی سبب سننے کو ملتا تھا، جن کا مقصد اسے ہرٹ کرنا نہیں ہوتا تھا، وہ محض اسے تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے۔